Applications of Lagrange's equations. Lagrangian method is a very convenient way of setting up the equations of motion. Because during setting up the original form of equations of motion in summation J F J I plus Fi applied is equal to Pi dot, it is necessary to work with many vector forces and accelerations. With the Lagrangian method, we have to deal with the two scalar functions, kinetic energy T and potential energy V, which greatly simplifies the problem. They have the same value in many coordinate systems, unlike the vectors of Newton's laws, whose components depend on the coordinate system used. This feature of coordinate system may be used, and one is free to choose coordinates suited to the problem. That is why we adopted the new symbol Q to represent coordinates, as the coordinate system is now arbitrary. We then call Q by the name generalized coordinates. A straightforward routine procedure can now be established for all problems of mechanics to which the Lagrangian formulation is applicable. One was only to write kinetic energy T and potential energy V in generalized coordinates. Then to find the value of Lagrangian L and substitute it in Lagrange's equation to obtain equations of motion. सर हमारे पास ये Lagrange's equation है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे वेयर जे बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैपिटल क्यू जे चाहिए. तो जनरलाइज फोर्स इसको हमने डिफाइन किया था और किनेटिक एनर्जी टी यानी हाफ एम स्क्वायर इनकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्यू जे एंड क्यू जे डॉट. अब कैसे ये निकालेंगे, ये हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. इन फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मोशन ऑफ पार्टिकल in space using Cartesian coordinate system. To consider the motion of a particle of mass m located by Cartesian coordinates, it will be shown that the Lagrangian equation of motion, time derivative of partial t by partial qj dot minus partial t by partial qj is equal to capital Qj, will become the Newton's equation of motion. As we know that the kinetic energy is equal to half mv square, or this can be written as T is equal to half m x dot square plus y dot square plus z dot square, where x dot is the dx by dt, yani velocity of the particle along x-axis. Y dot is the dy by dt, yani velocity of the particle along y-axis. And z dot is dz by dt, and it is the velocity of the particle along z-axis. So square of the velocity along x-axis x dot ka square plus square of the velocity along y-axis plus y dot ka square, and square of the velocity along z-axis in z dot ka square. So kinetic energy is equal to half m x dot square plus y dot square plus z dot square. And the definition of the generalized force is capital Qj is equal to summation I Fi dot partial Ri by partial Qj, where Qj is the generalized coordinate and j has value 1 to up to n. In terms of Cartesian coordinates, let Q1 is equal to x, Q2 is equal to y, and Q3 is equal to z. Because we have a single particle, then j has only value 1, 2, and 3.
three coordinates for single particle, and Fi also has only value 1. I is equal to 1. So and summation over I is no more needed. We can take R is equal to xi plus yj plus zk, और यहीं से फिर इसका अगर वेलोसिटी निकालेंगे इट विल बी dr/dt, यानी v इज इक्वल टू r डॉट, तो दिस विल बिकम dx/dt, यानी x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट k. Velocity along x-axis, velocity along y-axis, and velocity along z-axis. जब हम यहाँ से r से वेलोसिटी बनाएंगे तो फॉर j इज इक्वल टू 1 हम इस इक्वेशन j को 1 पुट करें तो q1 इज इक्वल टू, अब समेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि i की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 है, इसको भी हम सिर्फ f कह देंगे अब, पार्शियल r बाई पार्शियल क्यू जे, और j की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो f डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल q1, यानी q1 इज इक्वल टू f डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल q1, और q1 को हमने x कहा है तो ये f डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल x बन जाएगा, और r की वैल्यू ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इसमें पुट करें तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसमें वो पार्शियल डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा इंटू आई प्लस वाई का डेरिवेटिव x के लिहाज से y कांस्टेंट होगा तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा और z के का डेरिवेटिव भी 0 होगा। हमारे पास ये बनेगा कि q1 इज इक्वल टू f डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल x, यानी f डॉट पार्शियल x बाई पार्शियल x आई प्लस पार्शियल y बाई पार्शियल x j प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल x के, ये दोनों डेरिवेटिव 0 हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारे पास 1 इंटू आई बाकी 0, तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि q1 इज इक्वल टू f डॉट आई, f डॉट आई, और f को लेट f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो ये f की वैल्यू ये पुट कर दें तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट आई, तो यहाँ से ये बनेगा एफ एक्स आई डॉट आई प्लस एफ वाई जे डॉट आई प्लस एफ जेड के डॉट आई, और हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा, जे डॉट आई 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा, क्योंकि ये आई डॉट आई पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है या उनके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डॉट वेक्टर्स हों उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो जे डॉट आई इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0, हमारे पास जिससे यहाँ से एफ वाई जे डॉट आई आएगा टर्म 0 हो जाएगी, और एफ जेड के डॉट आई ये टर्म भी 0 होगी, सिर्फ एफ एक्स आई डॉट आई वहाँ से हमारे पास एफ एक्स आएगा, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स निकलती है। और इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर जे इज इक्वल टू 2, हमारे पास यहाँ फिर जो है जो वैल्यू बनेगी वो होगी, यानी Q2 इज इक्वल टू एफ डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल स्मॉल q2, और स्मॉल q2 को हमने y का नाम दिया है, तो ये f डॉट पार्शियल r बाई पार्शियल y बनेगा, यानी r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर ये आएगा q2 इज इक्वल टू एफ वाई, इन द सेम वे q3 इज इक्वल टू आ जाएगा एफ जेड, q1 एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, Q2 एफ वाई के इक्वल आ रहा है, और Q3 जो है वो एफ जेड के इक्वल आएगा। अब हम जो ये पर हमने इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की लिखी है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये इसका काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन यानी L2 का डेरिवेटिव अगर हम x के लिहाज से लें तो अगर हम देखिए आप x डॉट तो है, y डॉट है, z डॉट है, लेकिन x टर्म इस इक्वेशन में नहीं है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो फिर t का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, यानी पार्शियल t बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 0, और इस तरह से
y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल t बाई पार्शियल y वो भी 0 होगा। इस तरह से पार्शियल t बाई पार्शियल z लेंगे तो वो भी 0 होगा, यानी x, y या z के लिहाज से किनेटिक एनर्जी t का डेरिवेटिव 0 होंगे। तीनों के तीनों डेरिवेटिव y के लिहाज से भी 0 है और z के लिहाज से भी 0 है। अब अगर हम इसका x डॉट, y डॉट और z डॉट के लिहाज से बारी बारी डेरिवेटिव लें, सबसे पहले t का x डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी 1/2m पार्शियल बाई पार्शियल x डॉट ऑफ x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ये इस टर्म के हमने दोनों साइड पे, यहाँ भी हमने पार्शियल बाई पार्शियल x डॉट लिख दिया और ये चूंकि मास 1/2 ये कांस्टेंट है, इनको डेरिवेटिव से बाहर लिखा तो इसके अक्रॉस भी पार्शियल बाई पार्शियल x डॉट हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हाफ m पार्शियल x डॉट का स्क्वायर बाई पार्शियल x डॉट प्लस पार्शियल y डॉट का स्क्वायर बाई पार्शियल x डॉट एंड पार्शियल z डॉट का स्क्वायर बाई पार्शियल x डॉट। तो यहाँ चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो x डॉट जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो उस टर्म के अलावा बाकी टर्म्स कांस्टेंट होती हैं, तो यहाँ x डॉट वाली टर्म जहाँ होगी वो उसके अलावा बाकी तमाम टर्म्स कांस्टेंट कंसिडर होंगी। तो इस x डॉट स्क्वायर का x डॉट के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये सिंपल पावर फार्मूला लगेगा, यानी 2x डॉट, 2x डॉट। ये y डॉट है तो x डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव 0 होगा, ये z डॉट है इसका भी x डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव ओनली m into x डॉट। So partial t by partial x dot is equal to mx dot. In the same way जब हम y डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे t का, यानी यहाँ x डॉट की बजाय अगर y डॉट कर दें तो इस टर्म से डेरिवेटिव भी 0 निकलेगा, इस टर्म से भी डेरिवेटिव 0 निकलेगा। ये y डॉट वाली टर्म जो है वहाँ से 2y डॉट डेरिवेटिव बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास पार्शियल t बाई पार्शियल y डॉट इज इक्वल टू my डॉट। जैसे ये mx डॉट निकला है इस तरह से ये my डॉट निकलेगा और ऐसे ही z के लिहाज से डेरिवेटिव लेने से ये mz डॉट हमारे पास आएगा। For x coordinate, that is for j is equal to 1, qj is equal to q1, let this is equal to x और qj dot will be equal to q1 dot या x dot। तो इस बेस पे हम लैग्रेंजीज इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल t बाई पार्शियल qj डॉट, ये था qj डॉट, तो qj डॉट की जगह अब हम लिख सकते हैं x डॉट, qj डॉट की जगह x डॉट और ऐसे तो ये बन गया फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल t बाई पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल t बाई पार्शियल qj थी ये, तो अब यहाँ qj की जगह हमने x ले लिया, यानी qj को इक्वेशन में x से रिप्लेस कर दिया और qj डॉट को हमने x डॉट से रिप्लेस कर दिया और जो यहाँ qj था वहाँ j की वैल्यू 1 पुट करके इसको हमने q1 की को रख दिया। सो वी कैन राइट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल t बाई पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल t बाई पार्शियल x इक्वल टू q1। हमारी लैग्रेंजी इक्वेशन है फॉर x, ये बन जाती हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो टाइम डेरिवेटिव ये पार्शियल t बाई पार्शियल x डॉट अभी हमने निकाला ये mx डॉट, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी माइनस पार्शियल t बाई पार्शियल x, ये भी अभी हमने निकाला है, ये 0 था, ये वैल्यूज पुट की हैं और q1 हमने ऊपर निकाला था ये fx के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब या इसका डेरिवेटिव लेंगे, मास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा तो dx डॉट बाई dt, यानी इसका एक डॉट और कोई टाइम डेरिवेटिव है तो एक डॉट और बढ़ जाएगा तो fx इज इक्वल टू mx डबल डॉट निकलता है। इसी तरह से लैग्रेंजीज इक्वेशन में j इज इक्वल टू 2 पुट करें तो q2 बनेगा qj इज इक्वल टू q2, इसको हम y के इक्वल रख रहे हैं और इस तरह से qj डॉट जो है ये q2 डॉट बनेगा और इसको हम y डॉट के इक्वल लिखेंगे। तो हमारे पास जो लैग्रेंजीज इक्वेशन है वो ये बनेगी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल t बाई पार्शियल y डॉट, यानी अब qj डॉट की जगह हमने ये y डॉट लिख दिया,
माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे, तो यहाँ क्यू जे की जगह हमने वाई ले लिया है इक्वल टू क्यू टू की वैल्यू हमने पर निकाली थी एफ वाई, यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट कर दें अभी जो हमने निकालनी है कि पार्शियल टी बाई पार्शियल वाई डॉट जो है ये एम वाई डॉट के इक्वल है, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये एम वाई डबल डॉट बन जाएगा। ये पार्शियल टी बाई पार्शियल वाई ये 0 था और क्यू टू जो एफ वाई के इक्वल है तो वी हैव एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट। और इस तरह से जेड एक्सिस के लिए अगर हम लैग्रेंज इक्वेशन जो है जेड एक्सिस के लिए वो ये बनेगी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी बाई पार्शियल जेड डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल जेड इज इक्वल टू क्यू थ्री। इस केस में हमने क्यू जे को जेड रखा है, यानी क्यू जे इज इक्वल टू 3 के लिए क्यू थ्री उसको जेड कहा तो फिर क्यू थ्री डॉट जेड डॉट बनेगा। और ये वैल्यू हमने निकाली थी एम जेड डॉट, ऊपर वो वैल्यू यहाँ पुट करें, टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एम जेड डबल डॉट, ये पार्शियल टी बाई पार्शियल जेड ये 0 था और Q3 हमने ऊपर जो निकाला था वो एफ जेड के इक्वल था, तो वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। तो हमारे पास तीन इक्वेशन बनती हैं एक्स एक्सिस के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, वाई के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट और जेड के लिए एफ जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। बिकॉज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एम वाई जे प्लस एफ जेड के, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की ये वैल्यू पुट करें, एफ जेड की जगह आगे एम एक्स डबल डॉट आई प्लस एम वाई डबल डॉट जे प्लस एम जेड डबल डॉट के, इसमें से एम कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा फिर एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं एक्स डबल डॉट एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, और फिर एक और डेरिवेटिव जब लेंगे तो डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन बनेगा। तो ये एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई डबल डॉट है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और जेड डबल डॉट है एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। हमारे पास ये बन गया एफ इज इक्वल टू एम ए, जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इट मीन कि हमने जो है वो लैग्रेंज इक्वेशन से सॉल्व किया है और रिजल्ट हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आ गया है। तो दिस इज द एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट and fz is equal to mz double dot. These three are the equations of motion for the particle moving in space, single particle moving in space. A motion of a particle in polar plane coordinates. अब प्लेन ले रहे हैं हम जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर ये कोई पोजीशन वेक्टर आर है पॉइंट पी के लिए तो इसके दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई या इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा। आर इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है इस वेक्टर की फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, और ये थीटा जो है वो एंगल है अलोंग एक्स एक्सिस उस ओ पी वेक्टर या आर वेक्टर का। तो लैग्रेंज इक्वेशन इस केस में चूंकि जब दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो जे की वैल्यू 2 होगी, 1 और 2, जे इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 2। तो लैग्रेंज इक्वेशन टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 1 डी बाई टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी बाई पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल आर इक्वल टू कैपिटल क्यू आर। यहाँ हमने जे इज इक्वल टू 1 रखा है तो क्यू जे डॉट विल इज बिकम जो है Q1 डॉट, और Q1 को हमने R का नाम दिया है, इस वजह से ये Q1 डॉट जो है वो R डॉट बन जाएगा, यानी QJ डॉट की जगह R डॉट आएगा और QJ की जगह हमने R लिया है। और इस तरह से जब J को हमने 2 रखा है तो QJ डॉट, जिसको हम
अब Q2 डॉट बन जाएगा और Q2 को हमने थीटा का नाम दिया तो Q2 डॉट जो है वो थीटा डॉट बनेगा। इट मीन के QJ डॉट अब हमारे पास थीटा डॉट होगा और QJ जो है वो हमारे पास थीटा होगा। तो फिर ये इक्वेशन ये वाली कि टाइम डेरिवेटिव पार्शियल टी बाई पार्शियल अब थीटा डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा इज इक्वल टू कैपिटल Q2 जे की जगह 2, या यहाँ थीटा ले लिया हमने यानी QR और Q थीटा। We know that the relations between Cartesian coordinates and polar coordinates are x is equal to r cos theta। ये अगर एंगल थीटा हो तो ये x होगा, ये y की वैल्यू है। तो we know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। यहाँ से अगर हम इनका वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमने किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है t की वैल्यू, अब चूंकि हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स वो r और थीटा हैं, तो हमें ये जो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r डॉट, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा और t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा डॉट, यानी t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r थीटा r डॉट थीटा डॉट हमने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए x डॉट यानी dx बाई dt हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से। ये दो टर्म्स हैं r और cos थीटा, तो प्रोडक्ट फार्मूले से इसका डेरिवेटिव बनेगा। r का डेरिवेटिव लिया dr बाई dt, cos थीटा को वैसे लिख दिया प्लस, और अब r को छोड़ के cos थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो दिस dr बाई dt हमारे पास r डॉट बन गया, r डॉट इंटू कॉस थीटा प्लस r, अब cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर ये थीटा डॉट साइन थीटा माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा, ये एक्स डॉट यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ गया। इस तरह से ये y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो y डॉट इन डी वाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी इंटू साइन थीटा प्लस r इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा। तो ये डी आर बाई डी टी आर डॉट साइन थीटा प्लस आर साइन का डेरिवेटिव कॉस और थीटा का थीटा डॉट, तो आर थीटा डॉट कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया। जैसे पीछे हमने निकाला था कि वेलोसिटी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया था x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर से। अब जी हाँ दो ही हैं x और y हैं, अब वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विल बी x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। x डॉट स्क्वायर x डॉट है इसके इक्वल, इसका स्क्वायर लिया तो ये r डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r square theta dot square sin square theta and minus 2 this multiplied by the r dot theta dot cos theta sin theta। हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। यानी इसका जब हम इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास आ गया r डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आर डॉट कॉस थीटा एंड आर थीटा डॉट साइन थीटा। और ऐसे ही y डॉट का स्क्वायर लेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर बनेगा तो आर डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस 2 टाइम्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आर डॉट साइन थीटा और आर थीटा डॉट कॉस थीटा। अब अगर आप गौर करें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये प्लस माइनस की ये प्लस की, तो ये आपस में जब उनको ऐड करेंगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं आर डॉट का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो आर डॉट स्क्वायर कॉमन रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही जब प्लस
ये आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर दोनों टर्म में मौजूद है, ये कॉमन निकाल लें, तुम्हारे पास फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये टर्म है, यानी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर विल बिकम आर डॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये ब्रैकेट वाली टर्म 1 की इक्वल है और यहाँ भी ये ब्रैकेट वाली टर्म 1 की इक्वल है। तुम्हारे पास फिर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर जो है दिस कम्स आउट टू बी आर डॉट स्क्वायर यहाँ से और आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। This is the x dot square plus y dot square is the square of the velocity. तो kinetic energy which is T is equal to half mv square, तो v square की जगह x dot square plus y dot square और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फिर kinetic energy in terms of r and theta आ जाती है, यानी T is equal to half r dot square plus r square theta dot square। तो kinetic energy in पोलर कोऑर्डिनेट्स में किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकलती है T इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द किनेटिक एनर्जी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। अब लैग्रेंज इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए वो हम ये लैग्रेंज इक्वेशन है, इनको अप्लाई करने के लिए हमें ये पार्शियल टी बाई पार्शियल आर की वैल्यू चाहिए और फिर पार्शियल टी बाई पार्शियल आर डॉट की वैल्यू चाहिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा और पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा डॉट, ये चार हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए टी से, कि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। ये चार डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं, टी की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पार्शियल आर बाई टी बाई पार्शियल आर। अब आर का पार्शियल डेरिवेटिव है तो आर के अलावा बाकी तमाम टर्म्स कांस्टेंट कंसीडर होंगी। इट मीन कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर डॉट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर का आर के लिहाज से थीटा डॉट स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2r, तो ये 2r थीटा डॉट स्क्वायर डेरिवेटिव यहाँ बनेगा। इस हाफ एम डेरिवेटिव से बाहर निकल गया, आर डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, थीटा डॉट स्क्वायर ये डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे और आर स्क्वायर का आर के लिहाज से जो कि जस्ट सिंपल पावर रूल लगाएंगे, यानी 2r, तो ये हमारे पास यहाँ से बन गया 2r थीटा डॉट स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो mr थीटा डॉट स्क्वायर हमारे पास पार्शियल t बाई पार्शियल r की वैल्यू आ गई। इस तरह से t का r डॉट के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो 1/2m पार्शियल r डॉट स्क्वायर बाई पार्शियल r डॉट प्लस पार्शियल r डॉट ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी ये पार्शियल बाई पार्शियल r डॉट हमने इस टर्म के साथ भी लिख दिया और इस टर्म के साथ भी। अब यहाँ पे ये इस टर्म में r तो है, थीटा डॉट तो है, लेकिन r डॉट नहीं है, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स r डॉट के लिहाज से कांस्टेंट होंगी, इस वजह से इसका डेरिवेटिव r डॉट के लिहाज से 0 होगा, और यहाँ से r डॉट का स्क्वायर है तो ये जस्ट सिंपल पावर रूल लगेगा, पावर फार्मूला, यानी इट विल बी 2r डॉट। इन r डॉट स्क्वायर से 2r डॉट, तो 1/2m 2r डॉट, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ इक्वल टू mr डॉट, तो पार्शियल t बाई पार्शियल r डॉट जो है ये mr डॉट की इक्वल आ गया। जो पहली इक्वेशन लैग्रेंज इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दें, यानी ये यहाँ पे पार्शियल t बाई पार्शियल r डॉट, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा mr डॉट एंड माइनस पार्शियल t बाई पार्शियल r, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी mr स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें
तो ये डी बाई डी टी ऑफ एम आर डॉट माइनस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्यू आर। डी बाई डी टी ऑफ एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। इसको सॉल्व कर दें तो ये मास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डी आर डॉट बाई डी टी बनेगा, जो आर डॉट का एक और टाइम डेरिवेटिव है, तो ये टर्म एम आर डबल डॉट बन जाएगी माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया क्यू आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब इस तरह से टी का जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा डॉट लेंगे तो इससे हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा जब लेंगे तो इसमें देखें आर डॉट है, आर है और थीटा डॉट है, यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर थीटा नहीं है। थीटा डॉट तो है लेकिन थीटा नहीं है। तो इस टी का यानी किनेटिक एनर्जी का थीटा के लिहाज से जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा, यानी पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा विल बी ज़ीरो। पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा जो है वो ज़ीरो होगा। और पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा डॉट जब लेंगे तो यहाँ जो कि थीटा डॉट मौजूद है तो इस टर्म का से डेरिवेटिव आएगा। ये पहली टर्म आर डॉट है, तो पहली टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, यानी पार्शियल बाई पार्शियल थीटा डॉट ऑफ आर डॉट स्क्वायर ये ज़ीरो हो गया, एंड पार्शियल बाई पार्शियल थीटा डॉट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे, बाकी बचेगा पार्शियल थीटा डॉट स्क्वायर बाई थीटा डॉट। इन थीटा डॉट स्क्वायर का थीटा डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव जो कि टू थीटा डॉट बनेगा, पावर वाला रूल, टू थीटा डॉट, इन पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, अब पावर में से एक माइनस होगा, तो ये टू थीटा डॉट, तो ये बन गया टू के साथ टू कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा डॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आएगा। अब ये वैल्यूज ये पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा इक्वल टू ज़ीरो एंड पार्शियल टी बाई पार्शियल थीटा डॉट इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यानी सेकंड लैग्रेंज इक्वेशन जो थी ये वाली, ये टर्म ज़ीरो है और ये अभी हमने निकाली थी कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो ये बन गया टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्यू थीटा। ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्यू थीटा। इसका डेरिवेटिव लें, इसमें फिर आप देख रहे हैं मास को बाहर निकाल लें तो आर स्क्वायर और थीटा डॉट, यानी यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक आर स्क्वायर दूसरी थीटा डॉट, जिसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे बारी बारी, पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे फिर थीटा डॉट का। दिस कम्स बिकम्स एम आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो ये टू आर डी आर बाई डी टी, थीटा डॉट को छोड़ दिया, फिर प्लस आर स्क्वायर को छोड़ के थीटा डॉट का डेरिवेटिव ले लिया टी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट। अब ये डी आर बाई डी टी आर डॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस विल बिकम एम टू आर आर डॉट थीटा डॉट, यानी ये टू एम आर आर डॉट थीटा डॉट बन गया, फिर प्लस ये एम आर स्क्वायर और ये थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट का एक और टाइम डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, तो ये क्यू थीटा इज इक्वल टू टू एम आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट। अब इन इक्वेशन में हमें अब एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है आर के लिए, क्यू आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, और थीटा के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई क्यू थीटा इज इक्वल टू टू एम आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट। अब इनमें हमें ये क्यू आर और क्यू थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो ये हमारे पास फाइनली हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुंच जाएंगे। तो क्यू आर यानी जनरलाइज फोर्स along rx और जनरलाइज फोर्स along थीटा, ये दो वैल्यूज हमने निकालनी है। उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी,
कि क्यू जे इज इक्वल टू समेशन जे एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे। अब यहाँ पे भी क्योंकि सिंगल पार्टिकल है तो ये आई जो है समेशन आई है, समेशन आई एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे। तो ये समेशन ख़त्म कर देंगे, आई को यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये सिंपल रह जाएगा एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे, यानी कैपिटल क्यू जे इज इक्वल टू एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे। जब जे को 1 लेंगे तो हमने क्यू जे को आर के इक्वल लिया था फॉर जे, यानी क्यू वन इज इक्वल टू आर। हमारे पास फिर ये इसमें जब हम जे को 1 पुट करेंगे तो ये क्यू वन इज इक्वल टू एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल क्यू वन, क्यू वन की जगह आर आ गया, तो ये हमारे पास कैपिटल क्यू वन इज इक्वल टू या क्यू आर इज इक्वल टू एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल आर। ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, ऊपर आर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से क्यू थीटा जो है क्यू टू, इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल थीटा। अब लेट एफ इज इक्वल टू एफ आर एन यूनिट वेक्टर प्लस एफ थीटा एल यूनिट वेक्टर, कि अगर हम ये देखें कि आर की ये डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में अगर हम एन यूनिट वेक्टर ले लें जो आर की डायरेक्शन को शो करें, और इसके परपेंडिकुलर एक एल यूनिट वेक्टर ले लें, इन एन हैट एक यूनिट वेक्टर है जो कि आर की डायरेक्शन को शो करता है, और एल यूनिट वेक्टर एल हैट ये इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जो कि क्योंकि थीटा जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, एक्सिस से है, तो ये एल यूनिट वेक्टर जो है वो थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन को शो कर रहा है। एन यूनिट वेक्टर आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन को शो करता है, और एल यूनिट वेक्टर थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम आर की डायरेक्शन को रेफरेंस से इसको हम रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे, ये रेडियल डायरेक्शन यानी एन हैट जो है ये रेडियल डायरेक्शन को शो कर रहा है, और थीटा एल जो है वो थीटा की डायरेक्शन, दूसरे लफ्जों में ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसके अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं तो एक कंपोनेंट जो होगा अलोंग एन यूनिट वेक्टर ये रेडियल कंपोनेंट कहलाएगा, और एल अलोंग एन यूनिट वेक्टर ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाएगा। तो फोर्स को इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एफ आर उसका मैग्नीट्यूड अलोंग रेडियल डायरेक्शन प्लस एफ थीटा मैग्नीट्यूड अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। एल यूनिट वेक्टर ट्रांसवर्स डायरेक्शन को शो कर रही है और एन यूनिट वेक्टर रेडियल डायरेक्शन को शो कर रहा है। द सेम वे आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब इसमें जो है वो एल यूनिट वेक्टर के अलावा कोई इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन इसकी यूनिट वेक्टर है। इस डायरेक्शन में आर की चूँकि कोई वैल्यू नहीं है परपेंडिकुलर, इसलिए ये हमारे पास इसको हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड आर और इसकी डायरेक्शन एन हैट रेडियल डायरेक्शन। अब ये दोनों वैल्यू एफ और आर दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो एफ की जगह आ गया एफ आर एन हैट प्लस एफ थीटा एल हैट, यानी एफ आर एन यूनिट वेक्टर प्लस एफ थीटा एल यूनिट वेक्टर डॉट पार्शल आर, तो आर की जगह आ गया आर एन यूनिट वेक्टर बाई पार्शल आर मैग्नीट्यूड। और इस तरह से क्यू थीटा इट विल बी Q2 यानी एफ डॉट पार्शल आर बाई पार्शल, यहाँ पे भी एफ की जगह आ गया एफ आर एन यूनिट वेक्टर प्लस एफ थीटा एल यूनिट वेक्टर डॉट पार्शल आर एन यूनिट वेक्टर बाई पार्शल थीटा। अब इनको हमने ये जो इनको सॉल्व करना है पार्शल बाई पार्शल आर ऑफ आर एन यूनिट वेक्टर एंड पार्शल बाई पार्शल थीटा ऑफ आर एन यूनिट वेक्टर। We can define these unit vectors n hat and L hat in the direction of increasing r and theta as shown in figure. In terms of Cartesian coordinates, the vectors n and L can be written as
एन वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। आर की जो एन यूनिट वेक्टर है वो आर की डायरेक्शन में है। इसको अगर हम एक लम्हे के लिए समझ लें कि ये एन वेक्टर है, आर को अगर हम एन फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए, तो फिर हम जानते हैं कि ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट होता है और ये इसका वाई कंपोनेंट होता है। और हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होता है इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी ये जो है इसका एक्स कंपोनेंट ये आर कॉस थीटा है। आर को अगर हम एन ले लें, एन यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इट मीन कि अगर हम इसको एन वेक्टर समझते हैं तो ये फिर इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा कॉस थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है यानी आर की जगह 1 आ गया तो आर कॉस थीटा बन गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस तरह से वाई कंपोनेंट इसका है साइन थीटा, क्योंकि इसमें भी अब आर की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्स कंपोनेंट इसका बना है कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। जिन एन यूनिट वेक्टर जो है इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट इसका होगा कॉस थीटा आई और वाई कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा जे। एन यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे हम यूं लिख सकते हैं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और इस तरह से जो एल यूनिट वेक्टर है, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ से अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन यूं लगाएं तो ये जो एंगल थीटा है यहाँ भी अभी वही एंगल थीटा बनेगा। तो थीटा एंगल यहाँ तक है, आगे ये 90 का एंगल है। इट मीन के एक्स एक्स के साथ एल यूनिट वेक्टर का जो एंगल बनता है वो 90 प्लस थीटा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा ये और 90 एंगल, ये 90 प्लस थीटा एंगल बनेगा। तो फिर एल के जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो होगा कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा। जैसे ये यहाँ एंगल इसके लिए एंगल थीटा था, अब एल के लिए हमारे पास एंगल 90 प्लस थीटा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट जो बनेगा कॉस 90 प्लस थीटा और वाई कंपोनेंट साइन 90 प्लस थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट बन गया माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर और साइन 90 प्लस थीटा जो है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन गया कॉस थीटा इंटू जे। अब इसमें एन हम पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ आर एन था, तो इस रेफरेंस से हम एन का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पार्शियल एन यूनिट वेक्टर बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा आई प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा जे। और अगर हम ये देखें कि ये माइनस साइन थीटा आई प्लस जे कॉस थीटा जो है ये एल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फिर हम इस माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा को एल यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज में कि पार्शियल एन बाई पार्शियल थीटा जो है इट इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर। और इस तरह से जब हम इस n का विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, इस पार्शियल n बाई पार्शियल r, चूंकि इस इक्वेशन में कहीं r का जिक्र नहीं है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक पार्शियल n बाई पार्शियल r जो है वो 0 हो जाएगा। इस रिलेशन से इसका जब हम r के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे तो पार्शियल n ओवर पार्शियल r 0 होगा, क्योंकि इस टर्म में इस इक्वेशन के अंदर r नहीं है। पार्शियल n बाई पार्शियल r इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो सेकंड इक्वेशन है कि L इज इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इसका थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो ये माइनस आई पार्शियल साइन थीटा बाई पार्शियल थीटा प्लस जे पार्शियल कॉस थीटा बाई पार्शियल थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस आई
cos थीटा एंड माइनस जे साइन थीटा। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, क्योंकि दोनों टर्म्स में माइनस है, तो ये बनेगा फिर cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, जो कि n यूनिट वेक्टर के इक्वल है। इसलिए फिर आप इसको माइनस आई cos थीटा प्लस जे माइनस जे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस n यूनिट वेक्टर, या दूसरे लफ्जों में ये पार्शियल l बाई पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस n यूनिट वेक्टर। पार्शियल n बाई पार्शियल थीटा था l यूनिट वेक्टर, और पार्शियल l बाई पार्शियल थीटा है माइनस n यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से l का r के लिहाज से डेरिवेटिव लें, चूंकि इस इक्वेशन में भी r नहीं है, तो l का r के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल l बाई पार्शियल r विल बी 0। अब हम अपनी ये जो इक्वेशंस हैं क्यू आर और क्यू थीटा की, इन पे आ जाते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इनको सॉल्व करके क्यू आर और क्यू थीटा की वैल्यू निकालनी है कि एफ आर एन प्लस एफ एल थीटा पार्शियल बाई पार्शियल आर आर एन। अब ये चूंकि दो टर्म्स हैं आर और एन यूनिट वेक्टर, इसको हम प्रोडक्ट फार्मूले से इस डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल बाई पार्शियल आर ऑफ आर एन यूनिट वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं आर को छोड़ा एन का यूनिट पार्शियल एन बाई पार्शियल आर प्लस एन को छोड़ के पार्शियल आर बाई पार्शियल आर। ये पार्शियल आर बाई पार्शियल आर 1 बन गया। अब ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल आर जो है, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल आर इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म 0 होगी और यहाँ सिर्फ एन यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि ये पार्शियल आर 1 हो गया। तो हमारे पास बन गया कि एफ आर एन यूनिट वेक्टर प्लस एफ थीटा एल यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, ये फर्स्ट टर्म 0 प्लस एन यूनिट वेक्टर। और यहाँ से आप जानते हैं कि जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो एफ आर एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। जैसे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, इस तरह से एन डॉट एन जो है वो 1 के इक्वल होगा। और इस तरह से एफ थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ थीटा एल डॉट एन, एल और एन परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के, तो एल डॉट एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। एन डॉट एन 1 और एन डॉट एल या एल डॉट एन जो है वो 0 के इक्वल। तो हमारे पास पर ये फर्स्ट टर्म यहाँ 1 आ गया, तो एफ आर और ये 0, तो इट इज यानी क्यू आर इज इक्वल टू एफ आर निकलेगा। और इस तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें क्यू थीटा के लिए। यहाँ पे भी ये क्यू थीटा एफ आर एन प्लस एफ थीटा एल, और वही आर का हमने आर एन यूनिट वेक्टर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेना था, तो आर को छोड़ के एन का यूनिट वेक्टर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव, प्लस फिर एन यूनिट वेक्टर को छोड़ के आर का थीटा के लिहाज से टाइम डेरिवेटिव, आर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव। यानी ये था ना कि आर एन, इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्शियल थीटा आर एन हैट। इससे हमारे पास दो टर्म्स बनी, आर पार्शियल एन डॉट एन डैश एन हैट बाई पार्शियल थीटा प्लस एन हैट इंटू पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा। अब ये पार्शियल एन हैट बाई पार्शियल थीटा, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली है। ये पार्शियल एन हैट बाई पार्शियल थीटा जो कि एल यूनिट वेक्टर के इक्वल है, और पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा, क्योंकि आर और थीटा दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये टर्म इन पार्शियल एन बाई पार्शियल थीटा, इसकी जगह हमने एल ले लिया, और फिर ये पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा ये 0 के इक्वल है। तो एफ आर, अब इसको मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो एफ आर एन डॉट एल, एफ इन आर एफ आर एफ आर एन डॉट एल, और फिर प्लस आर एफ थीटा एल डॉट एल। तो एल डॉट एल सेम का डॉट प्रोडक्ट, वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 की इक्वल हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एन और एल परपेंडिकुलर हैं, तो इनका एन डॉट एल जो 0 है और एल डॉट एल
1 के इक्वल है, यानी ये 1 हो गया, यानी आर एफ थीटा आ गया, ये टर्म 0, तो क्यू थीटा इज इक्वल टू आर एफ थीटा। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू निकल आई एफ आर, और क्यू थीटा की वैल्यू निकली आर एफ थीटा। तो पीछे जो हमारी इक्वेशंस थी उनमें हम ये क्यू आर और क्यू थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। पीछे हमारे पास इक्वेशंस थी, ये क्यू थीटा ये था, क्यू थीटा इज इक्वल टू एम आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये हम क्यू थीटा की वैल्यू आर एफ थीटा डॉट पुट करेंगे, तो आर एफ थीटा डॉट विल बी इक्वल टू दिस। और इसी तरह से इस इक्वेशन में ये जो है क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि एफ आर है, तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर ये 15 जो है, ये इनमें वैल्यूज पुट की क्यू आर और क्यू थीटा की। हमारे पास ये एफ आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर निकल आया, और 15 में पुट की तो आर एफ थीटा डॉट इज इक्वल टू 2 एम आर थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ये इक्वेशन बनी। इसमें क्योंकि आर इधर भी है और आर इधर भी मौजूद है, आर से डिवाइड कर दें तो एफ थीटा इज इक्वल टू 2 एम, आर खत्म हो गया, आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर थीटा डबल डॉट, एक आर यहाँ से खत्म हो जाएगा, आर यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो एफ थीटा इज इक्वल टू 2 एम आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर थीटा डबल डॉट। अब एफ आर का मतलब है कि एफ आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड एफ थीटा इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये हमारी मतलूबा इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ आर रेडियल कंपोनेंट और ये डायरेक्शन प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट और इसकी डायरेक्शन, तो वैल्यूज पुट कर दें। एफ आर की वैल्यू ये है, तो ये एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर along radial direction and unit vector plus ये 2 m r dot theta dot plus m r theta double dot along transverse direction। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फोर्स F इज इक्वल टू, इसमें m को कॉमन निकाल लें तो r ये जो होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर n है प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट l है। तो ये एक्सेलरेशन को शो करेगा, जिसमें m को छोड़ के ये r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है, और 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट ये एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये जो टर्म्स थी कि 2 एम आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, यानी ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली ये दो टर्म्स हैं 2 एम आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यानी इसका अगर हम एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का डेरिवेटिव लें, एम को बाहर निकाल लें तो आर, पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, थीटा डॉट को सेम रखेंगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा पावर से 2 आर और आर का टाइम डेरिवेटिव, यानी 2 आर आर डॉट थीटा डॉट, तो यानी 2 एम आर डॉट थीटा डॉट। और ऐसे ही एम आर स्क्वायर को छोड़ के थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो थीटा डबल डॉट बनेगा, यानी इस 2 एम आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट को हम लिख सकते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और इट इज जस्ट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये टर्म जो है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये एंगुलर मोमेंटम को शो कर रही है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, and left hand side is exactly the applied torque. So we have simply
derive the torque equation. dl by dt is equal to tau. Since L is equal to R cross P, जिसको हम लिख सकते हैं R into mr theta dot, which is mr square theta dot. यानी एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो mr square theta dot आता है. ये जो mr square theta dot इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. और ये L यहाँ पुट कर दें तो ये dl by dt बनेगा जो टॉर्क को शो करता है. इन टॉर्क इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, where v theta यानी वेलोसिटी के कंपोनेंट along transfer direction is r omega. V is equal to r omega, या omega is d theta by dt, which is r theta dot. वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो along transfer direction is r theta dot. Since v is equal to इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट along radial direction is r dot, r dot n प्लस r theta dot l. तो यहाँ से एक्सेलरेशन है यही जो वैल्यू है कि r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर n और फिर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट l यूनिट वेक्टर. तो ये एक्सेलरेशन है. ये हमारे पास अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.